everyone, good morning. So, in today's video, the topics which we will be discussing is regarding what is statutory corporations and the features of statutory corporations. Okay, in the previous video, we had discussed about the departmental undertakings, that what is departmental undertaking is all about, and the features of departmental undertaking along with the merits and demerits. Okay, and in this video we will be talking about the features of statutory corporation and what is statutory corporations. About its demerits and merits we will be discussing in the further videos. Okay, so let's start with today's discussion. So, what is statutory corporations? Statutory corporations are public enterprises brought into existence by a special act of the Parliament. As I told you earlier as well, that कभी भी हम लोग whenever government is opening any public enterprises as like statutory corporations, so they brought that statutory corporation into existence by a special act in parliament. मतलब कि अगर कोई भी statutory corporations खोलनी है तो उसको खोलने के लिए गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है. ठीक है. The act defines its pass, function, rules and regulations governing its employees and its relationship with the government departments. जो ये एक्ट होता है ना, जो कि स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में फॉर ओपनिंग अ पब्लिक एंटरप्राइज एज लाइक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, दैट एक्ट्स डिफाइंस all the powers, functions, rules and regulation which is governing the all the employees of that particular statutory corporation and its relationship with the government and other government departments. Okay, like for example, as I told you earlier as well, that RBI is a statutory corporation, मतलब कि it's a public enterprise through which the government is having a economic participation in the country. Ab now this statutory corporation came into existence through passing a special act in the parliament which is known as RBI Act. Okay, this is a corporate body created by the legislature with defined powers and function and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी. मतलब कि ये एक ऐसी कॉरपोरेट बॉडी होती है जो कि लीगली क्रिएट की गई होती है लेजिस्लेचर द्वारा. ओके, एंड इसके पावर्स भी डिफाइंड रहती हैं कि इसकी कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करेगी कोई भी कॉरपोरेट बॉडी, और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है. लाइक एज यू कैन सी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी देख लो तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस ना, they are not dependent financially on anyone. They are financially independent. Like RBI is financially independent. It is not dependent upon other. Okay, with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. मतलब कि जिस काम के लिए आपने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने बनाई होगी, उस पर्टिकुलर काम का जितना भी स्पेसिफाइड एरिया होगा ना,
उस पर पूरा कंट्रोल उस कॉरपोरेट बॉडी का रहता है, ठीक है। और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी में भी उसका कंट्रोल रहता है। जैसे कि आप आरबीआई जो होता है ना, वो हमारे देश के जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, उसमें कितना इंटरेस्ट रेट होगा, किस तरीके से क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या फंक्शनिंग होगी, क्या क्या बैंक कर सकता है, बैंक की पावर्स क्या हैं, ये सब आरबीआई डिफाइन करता है, ठीक है। वट एवर इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो वाइल टेकिंग लोन्स, और वट एवर इंटरेस्ट रेट यू गेट इन योर सेविंग्स अकाउंट in a particular bank in which you are having your account is all decided by RBI. Okay, you must have heard about repo rates and reserve repo rates, that RBI has increased repo rate and reverse repo rate, and it decreased the rates of repo rate and reserve repo rate. These all are rates, or interest rate also you have heard about, EMI also you have heard. So these all are clearly managed and decided and controlled by the RBI, because it is a corporate body which is having a full control over its area, over its functioning area, or an activity which is forming. Okay, it is a corporate person and has the capacity of acting in its own name. आरबीआई एक कॉरपोरेट पर्सन है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आप बोल सकते हो इसे, जो कि लीगली क्रिएट किया गया है, और उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने खुद के नेम से अपने कामों को कर सके। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड considerable amount of operating flexibility of प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो इनके पास खुद का कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब कि इनके पास खुद की ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दे कैन टेक डिसीजंस बाय themselves, by itself, or you can say that they can function in whatever way they want to. I'm talking about corporate bodies, okay? So they can they can function, or they can operate without having any restriction, okay? तो इनके पास गवर्नमेंट की जैसी पावर होती है, जिसमें इनके पास ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी की, जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कोई रोकने नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, जब तक वो लॉ के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं वो कैसा भी काम कर सकते हैं, लॉ को नहीं तोड़ना है उन्हें। वैसे ही कॉरपोरेट बॉडी दे कैन ऑपरेट इन वट एवर वॉन्ट दे वॉन्ट, वट एवर वे दे वॉन्ट, विदाउट वायलेटिंग द लॉ, द एक्ट रूल्स, ओके। Now see its features. Statutory corporations have certain distinct features which are discussed below. कुछ अलग features हैं as compared to departmental undertaking. तो देखते हैं क्या है। पहला है, statutory corporations are set up under an act of parliament. पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है उनको सेटअप करने के लिए, and are governed by the provisions of the act. और एक्ट में जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, पावर ऑफ फंक्शंस दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। वो सारे प्रोविजंस इनको गवर्न करते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारे एक्ट में प्रोविज़न दिए होते हैं। बेसिकली कोई भी लॉ अगर होता है सब में प्रोविजंस होते हैं। प्रोविज़न मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी एक्ट या फिर लॉ के। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करते हैं कि कोई भी कॉरपोरेट बॉडी, कोई भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आर दे वॉलेटिंग द रूल्स? इफ दे आर, दे विल बी पनिश्ड। The Act defines the object, powers, privileges of a statutory corporation. एक्ट में क्या दिया हुआ है कि कोई भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन खोलने का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कौन कौन सी पावर्स मिली हैं और कौन कौन सी उसको प्रिविलेजेस, मतलब प्रिविलेजेस मिली हैं बीइंग अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, फ़ायदे मिले हैं। ओके, सेकंड है हमारा
दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ होली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा पूरे तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन्ड किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। उनके पास पावर होती है कि वो इट्स प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे अपने अकॉर्डिंग उसका अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेज इफ एनी। तो अगर कोई लॉस होगा तो उसको भी कौन बियर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। फ़ायदा उठा रहे हो तो लॉस भी तो उठाना पड़ेगा। थर्ड है, a statutory corporation is a body corporate and can sue and can be sued। मतलब कि जैसे हमने क्या कहा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो अगर कंपनी का कोई क्रेडिटर कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, कोई डेटर, तो कंपनी कोर्ट के पास जा सकती है कि हाँ ये हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, दे हैव प्रॉमिस्ड अस टू पे, है ना। So in the similar manner the statutory corporation is a body corporate। मतलब कि उनको एक अलग दर्जा दिया गया है, उनका लीगली बर्थ हुआ है, तो उनको एक बॉडी कॉरपोरेट माना जाता है। ऐसा बॉडी कॉरपोरेट जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है उनको। और सू करना मतलब कि वो उनके ऊपर केस फाइल कर भी सकते हैं और वो भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती हैं। दैट मीन्स इफ़ आरबीआई वांट्स तो आरबीआई के नाम पे किसी के ऊपर केस सू कर सकती है। वैसे तो केस में अगर आपको किसी के ऊपर करना है तो वो जिंदा आदमी होना चाहिए, आप नॉन लिविंग थिंग पे केस नहीं कर सकते ना। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बॉडी को क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, जैसे कि कंपनी को माना गया था, तो कंपनी को आप सू कर सकते हैं। सू करना मतलब केस किसी के ऊपर दर्ज करना, सू कर सकते थे और कंपनी भी सू कर सकती थी। वैसे ही आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के साथ है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के नाम पे आ सकते हैं। एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, और उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आरबीआई के नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है बिकॉज दे हैव गिवन आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है। ओके, सो कम अप टू द फोर्थ पॉइंट। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती है किसी के ऊपर, मतलब पैसों के लिए किसी भी डिपेंडेंट वो लोग नहीं होती हैं। It obtains funds by borrowing from the government। गवर्नमेंट से लेके ये लोग अपने फंड्स को ऑब्टेन करती, मतलब कि पब्लिक पे या फिर किसी पार्टनरशिप में लोग आपस में डिपेंड रहते हैं, सोल पे खुद पे डिपेंड रहते हैं। और अगर आप देखो कंपनी में पब्लिक पे डिपेंड रहते हैं, पब्लिक शेयर खरीदेगी तो पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दे जस्ट बोरो फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज़ के थ्रू पब्लिक से ले लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू मिलता कैसे है? कोई चीज़ गुड्स बेची, सर्विसेज बेची, तो उससे रेवेन्यू मिला। अब उस रेवेन्यू को, उस पैसे को ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको अथॉरिटी है कि वो लोग जो भी रेवेन्यू उनको मिलेगा सर्विसेज प्रोवाइड करने में पब्लिक को, जैसे कि अगर आप देखो तो जो भी सर्विसेज हमको आरबीआई प्रोवाइड करा ली है उसके लिए हम लोग उसको रेवेन्यू पे करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अब वो रेवेन्यू वो अपने काम के लिए यूज़ कर सकती है, तो वो इंडिपेंडेंट होगी फाइनेंस के लिए, है ना। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन खोली है गवर्नमेंट ने और वो एक बॉडी कॉरपोरेट है, तो उसके जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंट बनाने के जो तरीके होंगे और अकाउंट को फिर चेक करवाने के कि सही बने हैं कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के जो प्रोसीजर्स होंगे वो जो अलग जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉलो होते हैं ना, वो वैसे नहीं होंगे।
ठीक है, उसके डिफरेंट होंगे. इट ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट. जो सेंट्रल बजट आता है ना गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे आज बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, फेब में आता है, कई बार फेब में आया, अप्रैल में भी आ चुका है. तो जो सेंट्रल बजट होता है ना गवर्नमेंट का, उससे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का कोई भी लेना देना नहीं होता. दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट इट. The employees of these enterprises are not government or civil servant and are not governed by government rules and regulations. अब ये ऐसे enterprises के जो employees होते हैं वो लोग गवर्नमेंट के नौकर नहीं होते हैं, सर्वेंट नहीं होते हैं, ना ही पब्लिक के सर्वेंट होते हैं. सिविल सर्वेंट मतलब पब्लिक के सर्वेंट हो, जो सिविल सर्वेंट भी नहीं होते हैं. क्योंकि देखो ऐसे कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेंगी और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे उन पे, ये सब कुछ किस में दिया होता है, उस एक्ट में, जिस एक्ट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एग्जिस्टेंस बर्थ होता है. ठीक है, तो जब उस एक्ट में लिखा है मतलब कि उस एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो गवर्न करेंगे एम्प्लॉयज़ को, कि एम्प्लॉयज़ क्या करें और क्या ना करें, ना कि गवर्नमेंट और ना पब्लिक. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट. द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर governed by the provision of the act itself. as I told you, एक्ट जिस एक्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर बॉडी कॉरपोरेट का एग्जिस्टेंस होता है, बर्थ होती है, उसी एक्ट में लिखा होता है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने होंगे. जैसे कि आरबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, क्या वर्किंग प्रोसीजर्स होंगे, वो सब एक्ट में लिखा होगा, आरबीआई एक्ट में. इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय गवर्नमेंट because they are not government or civil servant. At times, some officers are taken from government department on deputation to head these body corporates. क्या होता है, कभी कभी कुछ ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनसे हम लोग ले लेते हैं, उन ऑफिसर्स को बुला लेते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए. Okay, so these all were the 6 points regarding the features of a statutory corporations. So this much is enough for today's video. In the next video, we will be discussing about the merits and demerits of a statutory corporations. Okay, so till then, see this video or watch this video, and if you found any sort of little bit doubt even in any of the topic which we had discussed yet, so you can ask me, okay, through comment section of YouTube or through WhatsApp as per you wish. Till then, thank you and have a nice day.